Good morning. Today we will continue with microcontroller 8051. In some of the last few classes, we discussed the various special function register of microcontroller 8051, its architecture. In the last class, we discussed regarding the two timers available in this 8051. Today we will discuss the serial communication. As we already discussed that it consists of a UART, that is Universal Asynchronous Receiver Transmitter unit is available in this. This unit is responsible for the serial communication, right? It consists of a full duplex serial post. फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि पोर्ट के थ्रू हम डाटा भेज भी सकते हैं, डाटा रिसीव भी कर सकते हैं. और जब सीरियल कम्युनिकेशन होता है तो पोर्ट P3 की जो बिट है दैट इज P3.0 एंड P3.1, those two bits they are used for serial communication, for transmitting a bit or for receiving a bit. For example, the port 3.0 that is termed as RxD, that is receive, and port P3.1 bit, that is your TXD pin. That means all the serial communication they are done through these two pins, right? The data which is to be serially communicated or you can say serially transmitted or to be serially received, that is done through another type of special function register which is known as serial buffer register. That serial buffer register consists of whatever is to be transmitted that is loaded into it, and then from that serial buffer register the bit will be transmitted bit by bit through the TXD line as shown here. If we say that this is serial buffer register which is an 8-bit register, right? इसके अंदर ये रजिस्टर होता है, जो भी काउंट हमारी होती है, जो भी बाइट हमने ट्रांसमिट करनी होती है वो सीरियल बफर रजिस्टर में हम लोड कर देते हैं. और किस रेट से करना है उसका रेट हम सेट कर देते हैं, बड रेट जिसको हम बोलते हैं. और ये इस बिट के थ्रू, इस लाइन के TXT पिन के थ्रू जो भी डाटा सीरियल धीरे धीरे बिट बाय बिट ट्रांसमिट हो जाएगा. इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि पहली जो बिट जाएगी वो LSB बिट जाएगी और लास्ट में जो बिट जाएगी वो MSB बिट जाएगी, राइट? व्हाट इज बड रेट? जो बड रेट है वो इसका सेट होगा कि कितने. बड रेट क्या होता है? दैट सिंबल ट्रांसमिटेड पर सेकेंड. देयर आर टू थिंग्स, वन इज ए बिट रेट, अनदर इज द बड रेट, राइट? बिट रेट मीन्स bit transmitted per second, bit, whether that bit is 0 or 1, whatever it be, that is bit rate. Whereas baud rate is number of symbols transmitted. Most of the time bit rate and baud rate they are same, but it is not always. अगर हम एक साथ दो बिट एक सिंबल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम सिंबल की बात करेंगे, ना कि बिट की बात करें. द सिंबल में कंसिस्ट ऑफ 2 बिट, द सिंबल में कंसिस्ट ऑफ 4 बिट और 8 बिट. Whatever be the combination of that symbol, that is its baud rate. And bit, individual bit is to be transmitted. So the serial buffer register that is loaded with the data which is to be 8-bit data which is to be transmitted serially, and that is done through this serial buffer register through the TXT pin, which is your port. जो port 3 है जो कि IO पोर्ट है, जो कि मल्टी फंक्शनल पोर्ट है, जिसकी इंडिविजुअल बिट के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी P3.1 बिट जो है इस काम को करेंगी. सिमिलरली कोई सिग्नल रिसीव करना है, सीरियली रिसीव करना है हमने, तो वो सीरियली जो रिसीव पिन है जो पोर्ट 3 की 0.0 वाली पिन है, दैट मीन्स पोर्ट 3 की जो पहली वाली जीरो वाली बिट है, दैट इज यूज फॉर रिसीविंग द डाटा, राइट? एंड दिस will come to a shift register which behave as serial in parallel out टाइप का रजिस्टर होता, जो कि आपने पढ़ा होगा STLD डिजिटल में. तो serial in और parallel out रजिस्टर होता. all the 8 bit they are gathered into this serial in parallel out register, and when all are taken care then they are loaded into the serial buffer register, which then it will be further received, right? The baud rate
can be set by the on-chip oscillator or on-chip, or it can be provided by the timer. अगर ये बड रेट ऑन चिप ऑसिलेटर, जो कि ऑन चिप हमारा ऑसिलेटर है जो कि हमारे क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इसको देता है, अगर उससे लेते हैं देन इट विल बी फिक्स बड रेट होता है, क्योंकि वो फिक्स ऑपरेट उस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसलिए वो बड रेट फिक्स होगा. बट दिस सीरियल कम्युनिकेशन कैन वर्क ऑन वेरिएबल बड रेट आल्सो. अलग अलग बड रेट पर भी ये काम कर सकता है. अगर फिक्स पे करना है तो वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा हमारा जो सिस्टम की कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी है. और अगर मान लीजिए ये वेरिएबल बड रेट पर काम कराना है तो दैट कैन आल्सो बी डन, एंड इफ दैट इज टू बी डन देन दैट इज डन. इन दैट केस द बड रेट इज सप्लाइड बाय द टाइमर 1. जो हमारा टाइमर दो टाइमर पढ़े थे हमने अभी T0 और T1, तो टाइमर 1 जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएबल बड रेट, राइट. सो द सीरियल कम्युनिकेशन is done through this serial buffer register, and this serial buffer register, this serial communication through this serial buffer register of this UART is controlled by another register which is known as ESCON register. ये ESCON register जो है ये इसके various operation जो है उनको कंट्रोल करेगा. जो various ESCON means serial control register. ये 8 बिट का रजिस्टर है. इसकी वेरियस बिट्स जो है दे विल डिसाइड कि ये क्या काम करेंगी क्या नहीं करेंगी. सो दिस ऑपरेशन ऑफ सीरियल ऑपरेशन दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस रजिस्टर. इस रजिस्टर में जो ये पहली 2 बिट D7 और D6 बिट जो है, एज द नेम सजेस्ट, SM0 SM1, that is serial mode 0 serial mode 1. These 2 pins bits they are responsible for setting the mode of serial communication. अब जब 2 है तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, that is 00 01 10 and 11. ये 4 कॉम्बिनेशन 4 सीरियल मोड को डिनोट करते हैं. दैट मीन्स ये जो फुल डुप्लेक्स सिस्टम UART अवेलेबल है 8051 में, आप कह सकते हो ये 4 मोड में ऑपरेट करता है. दैट मीन्स देयर आर 4 सीरियल ट्रांसमिशन रिसीविंग मोड. दे आर नेम्ड एज मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3. ये तो न्यूमेरिक हो गया. मोड का मतलब क्या हुआ, क्या काम करेंगे वे. इन केस ऑफ मोड 0 ये एक सिंपल शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम करेगा, राइट. इन मोड 1 में ये 8 बिट का, ये भी 8 बिट का है, 8 बिट, ठीक है. 8 बिट आपका UART की तरह काम करेगा, UART की तरह काम करेगा. 8 बिट का UART की तरह काम करेगा, ठीक है. मोड 2 9 बिट के UART की तरह काम करेगा, 9 बिट UART की तरह काम करेगा, राइट. एंड मोड 3 ये भी 9 बिट UART की तरह UART की तरह काम करेगा. इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है कि है तो ये भी 9 बिट और ये भी 9 बिट UART है. तो इसमें फर्क क्या है कि ये जो है ये वेरिएबल बड रेट पर काम करेगा. दैट मीन्स वेरिएबल बड रेट अगर आपने लेना है तो आप कहेंगे कि मैं मोड 3 में ऑपरेट करेंगे हम. और ये जो वेरिएबल बड रेट है ये सेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा टाइमर 1 के जरिए. वेयर एज ये फिक्स बड रेट के साथ काम करेगा, फिक्स बड रेट के साथ काम करेगा, फिक्स बड रेट के साथ काम करेगा ये, राइट. ये जो फिक्स बड रेट जो है ये 1/16 ऑफ द दिस फिक्स्ड बड रेट, इट कैन बी 1/16 और 1/32 जो हमारा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर काम करेगा. दैट मीन्स फिक्स्ड बड रेट में ये 2 उस पर काम करेगा, 1/16 ऑफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी और 1/32 ऑफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर. बट बड रेट अगर वेरिएबल बड रेट पर काम करा जो कि इसका मोड 3 होगा, उस केस में जो बड रेट दैट विल बी डिसाइडेड बाय द टाइमर 1 IC, राइट. सो दिस 2 दे आर यूज्ड to control the various operation of these operating modes. अब ये 4 ऑपरेटिंग मोड्स सीरियल मोड है कौन से, what is their meaning of that?
ये 4 है, इनको आप इस तरीके से ले सकते हो। आई एम शोइंग दिस लाइक दिस वन। ये है आपका मोड 0, ये है आपका मोड 1 और ये है आपका मोड 2 और 3। है क्या क्या जैसे मोड 0 क्या था? मोड 0 इज सिंपल शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम करेगा। दैट मीन्स आपकी ये 8 बिट जो है D0 to D7, D0 to D7, D0 से लेकर के D7 बिट तक ये स्टेप से है। पहले D0 ट्रांसमिट की जाएगी, फिर D1, D2, D3, D7, ये 8 ही बिट ट्रांसमिट की जाएगी, राइट। जबकि इसमें मोड 1 में जो TXT है ट्रांसमिट, इसी तरीके से ये 8 ही रिसीव की जाएगी, राइट। ये 8 ही रिसीव की जाएगी, 8 ही ट्रांसमिट की जाएगी। अभी इन दोनों की बात करते हैं। मोड 1 में क्या है? इन 8 बिट के साथ साथ एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट भी भेजी जाएगी, ठीक है। इन 8 बिट के जो सिंपल 8 बिट थी सीरियल मोड 0 में, वो सीधे सीधे वहीं भेजी जा रही थी। मोड 1 में उन 8 बिट के साथ एक स्टार्ट बिट विच विल ऑलवेज बी 0 और एक स्टॉप बिट विच विल ऑलवेज बी 1, ये उसके साथ भेजी जाएगी। स्टार्ट बिट जो कि स्टार्ट बताएगा और एंड बिट स्टॉप बिट जो कि बताएगा कि ये जो 8 बिट है ये ट्रांसमिट हो गई है। सो दिस इज मोड 1। मोड 2 और मोड 3 में क्या है? बात दोनों ही 9 बिट का है, फर्क सिर्फ फिक्स और वेरिएबल बर्ड रेट का है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे, वो कर ली, राइट। इसमें क्या, इसका मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर, इसमें ये जो स्टार्ट बिट है और ये जो स्टॉप बिट है इसकी तरह ये तो साथ में जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर प्रोविजन है कि हम एक 9th बिट भी भेज सकते हैं। दैट मीन्स अब ट्रांसमिशन जो है हमारी 9th बिट है। ये 9th बिट क्यों भेजते हैं जनरली? ये पैरिटी चेक करने के लिए भेजते हैं कि भी हम जब ट्रांसमिट कर रहे हैं कि भाई जो डाटा गया वो डाटा रिसीवर एंड पर सही रिसीव हो गया है या नहीं हो गया। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डाटा के साथ 8 बिट के डाटा के साथ एक पैरिटी बिट और भेज देते हैं। दैट पैरिटी बिट में भी इवन पैरिटी बिट और ओड पैरिटी बिट। क्या मतलब होता है कि भी जो कि इस पूरे 8 बिट के डाटा की पैरिटी जो है, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि इवन पैरिटी भेज रहे हैं हम, तो इसका मतलब वो जो 8 बिट का डाटा है वो तो इवन का भी हो सकता है, ओड का भी हो सकता है। अगर वो इवन का है तो इस 9वीं बिट को हम 0 करके भेज देंगे, सो दैट ओवरऑल 9 बिट का जो पैरिटी है वो इवन नहीं रही। अगर मान लीजिए 8 बिट का जो पैरिटी है ये ओड है और हमने पहले ही कह रखा कि इवन पैरिटी भेजेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये ओड पैरिटी थी तो इस 9th बिट को हम 1 करके भेज देंगे। 9th करके 1 करके भेजने से क्या, ओवरऑल की इसकी 8 बिट की ओड थी, ये 1 हो गया तो ओवरऑल की इवन पैरिटी होगी। सो एक तरीके से ये जो 9th बिट है ये क्रॉस चेक करने के लिए पैरिटी बिट के तौर पर हम भेज देते हैं, सो दैट हम रिसीवर एंड पर करेक्शन वो कर सके कि वेदर द डाटा रिसीव्ड दैट इज ओके और नॉट ओके। सो इसमें इस मोड में हम एक तरीके से आप ये कहिए कि हम 9 बिट का ट्रांसमिशन कर रहे हैं और ये 9 बिट स्टार्ट और स्टॉप बिट के साथ ये 9 बिट भी जाएगी, राइट। सो 8 बिट का सिंपल शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम करेगा, 8 बिट के डाटा की तरह विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। 9 बिट की तरह एक 9th बिट भी ऐड कर दी गई है, राइट। ट्रांसमिट करते टाइम, रिसीव करते टाइम वो 9th बिट का काम है पैरिटी के लिए, along with start and stop it. So these are the 4 operating mode of this UART. ठीक है, शिफ्ट 8 बिट का UART सिंपल, स्टार्ट और स्टॉप के साथ, 9 बिट का स्टार्ट एंड स्टॉप के साथ। SM2 is for multi process के लिए हम यूज करते हैं। दैट मीन एक ही इन्वायरमेंट में अगर एक से ज़्यादा ढेर सारे प्रोसेसर्स है, मीन्स एक से ज़्यादा माइक्रो कंट्रोलर्स कनेक्ट किए हुए हैं और उन माइक्रो कंट्रोलर्स के बीच में हम डाटा ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो फिर ये SM2 बिट का हम यूज़ करेंगे। अगर ये SM2 0 है, इसका मतलब मल्टी प्रोसेसर नहीं है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर नहीं है, एक ही प्रोसेसर है। और अगर ये बिट 1 है, इसका मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर है। वो क्या है वो बाद में बात करते हैं। REN बिट दैट इज रिसीव अनेबल,
कि जब हमारा रिसीवर एंड हमको रिसीव करने लगते हैं तो इस बिट को हम अनेबल कर देंगे, तो ही हमारा रिसीव जो RxD पिन के थ्रू हम डाटा सीरियली रिसीव करेंगे। RB8 एंड TB8 बिट एक्चुअली जो रजिस्टर है, जो सीरियल बफर रजिस्टर है, ये जो सीरियल बफर रजिस्टर है, ये सीरियल बफर रजिस्टर तो 8 बिट का ही है। जब हम कह रहे हैं कि हम 9th बिट भेज रहे हैं या 9th बिट रिसीव कर रहे हैं, 9 बिट का हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस वो 9वीं बिट कहाँ से आएगी, या वो 9वीं बिट कहाँ पर आएगी, या 9वीं बिट कहाँ से जाएगी, इजंट इट? क्योंकि इसके अंदर तो सीरियल बफर रजिस्टर के अंदर तो 8 बिट ही आएगी जो ट्रांसमिट करनी है। ये 8 बिट का, ये 8 बिट, ये 8 बिट, क्योंकि स्टार्ट एंड स्टॉप तो हमेशा फिक्स होती है। तो ये 8 बिट जो है, ये 8 बिट तो हमारे सीरियल बफर रजिस्टर में होगी। ये जो 9वीं बिट है, ये कहाँ से? ये 9वीं बिट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ट्रांसमिट करते टाइम हम इस 9वीं बिट को हम क्या ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, 0 ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं या 1 ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो इसको 0 या 1 बना देंगे। जब रिसीव हुआ है तो ये 9th बिट रिसीव हुई है, रिसीव करते टाइम तो ये 9th बिट 0 है या 1 है, ये डिसाइड करेगा। ठीक है। देन TI एंड RI, ये जो TI एंड RI है, ये है इंटरप्ट सीरियल रिसीव इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग। इनको हम कह सकते हैं सीरियल इंटरप्ट भी कह सकते हैं, दोनों को मिला करके। दे आर बेसिकली सीरियल इंटरप्ट। जैसे टाइमर इंटरप्ट था हमारा, ऐसे ही अब सीरियल इंटरप्ट आ गया। TI ट्रांसमिट इंटरप्ट एंड RI रिसीव इंटरप्ट। एक्चुअली ये क्या है, ये TI एंड RI, ये RI क्या से वो बताता है कि भाई बाइट रिसीव हो गई है और इसको जल्दी से इस सीरियल बफर रजिस्टर से पढ़ लिया जाए। दैट मीन्स जब ये हो गया, जब 8 बिट आ गई है तो रिसीव हो गई है, तो जैसे ही अलग अलग मोड में, जैसे इस सीरियल मोड में ये RI जैसे ही 8वीं बिट आई, ये RI सेट हो गई, मीन्स 1 हो गई। यहाँ पर जब 8 बिट स्टार्ट एंड स्टॉप के साथ है, तो जब ये स्टॉप बिट का मिड वे है, ये स्टॉप बिट के मिड वे में ये 1 हो जाएगी, इंडिकेट करते हुए। ऐसे ही यहाँ पर ये स्टॉप बिट के मिड वे में ये सेट हो जाएगी। मतलब इसका कहने का कि भाई हमारा डाटा जो है वो रिसीव हो गया है, कहाँ पर है, सीरियल इन पैरेलल आउट से होते हुए सीरियल बफर रजिस्टर में आ गया है। अब इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लिया जाए, और जब ये पढ़ लिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगी। दैट मीन जैसे ही डाटा, पूरा डाटा यहाँ पर आ गया, ये जो सीरियल RI बिट है, ये जो RI बिट है, ये RI नॉट RxD, ये RI बिट जो है, ये जो RI बिट है, ये हमारी सेट हो जाएगी। सेट हो जाएगी कहाँ पर, मोड 0 में 8वीं बिट के साथ ही, मोड 1 में भाई जो 9th बिट आई है 1, 2 और 3 में, जब जैसे स्टॉप बिट आ रही है, स्टॉप बिट के टाइम पे ही ये सेट हो जाएगी। राइट, इंडिकेट करेगा कि भी डाटा आ गया पूरा, इसको पढ़ लो, कहीं नया डाटा से रिप्लेस ना हो जाए। इसी टाइप से ट्रांसमिट करते टाइम हम TI को भेजते हैं साथ में। ये TI कब भेजेगा, ट्रांसमिट कंप्लीट हो गया है। राइट, ये बताता है कि भाई दैट लाइन इज अवेलेबल, जब ये खत्म हो गया कि अब दूसरा डाटा इसके ऊपर मतलब जब ट्रांसमिट हमारा कंप्लीट हो गया तो ये TI बिट एक्टिवेट होगी। ट्रांसमिट कंप्लीट हो गया, ये हमारी TI बिट एक्टिवेट होगी। ट्रांसमिट कंप्लीट हो गया, ये हमारी TI बिट एक्टिवेट होगी। इंडिकेट करता है कि भाई ट्रांसमिट हो गया, अब दूसरा डाटा जो है सीरियल बफर रजिस्टर में आप रख सकते हो, फिर वो उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। राइट, सो और ये भी जब ये ट्रांसमिट हो गया, उसके बाद नया बाइट ट्रांसमिट करते टाइम उससे पहले ये क्लियर कर दी जाएगी। राइट, अब मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में क्या है कि एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पर ढेर सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, एक प्रोसेसर ये है, एक प्रोसेसर ये है, एक प्रोसेसर ये है, एक प्रोसेसर, इनके बीच में ट्रांसमिट हो रहा है डाटा। तो उसको कम्युनिकेट कराने के लिए हम यूज करते हैं SM2 बिट का। राइट, और इस यहाँ पर एक चीज होती है कि भाई जब मान लीजिए ये ट्रांसमिट कर रहा है,
तो ये किसके लिए ट्रांसमिट कर रहा है, तो पहले उसका एड्रेस भेजना होगा और उसके बाद हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो 9th बिट है, माइंड इट, मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में इस 9th बिट का एक और काम आ गया है। वो 9th बिट मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में 9th बिट का काम क्या आ गया है कि ये 9th बिट ये बताती है कि जो डाटा अभी भेजा गया है वो डाटा क्योंकि जब डाटा ट्रांसमिट होगा कि नहीं, मान लीजिए 4 लगे हुए हैं, तो इन चारों के बीच में डाटा ट्रांसमिट होगा तो किसको पता चलेगा ये डाटा किसका है किसका नहीं। और डाटा लाइन भी वही है, तो क्या होगा कि भाई पहले ये 9th बिट ये बताएगी कि भाई जो डाटा ये जो अभी ट्रांसमिट किया गया है बिट, ये एड्रेस है और ये डाटा है। जब ये 9th बिट जो है 1 होती है, इसका मतलब है जो 9th बिट यहाँ पर जो 1 की जाती है, ये इंडिकेट करती है RB8, TB8 नहीं, RB8, कि भाई ये बाइट जो रिसीव हुई है ये एड्रेस है, और अगर ये 0 है इसका मतलब जो बाइट है ये डाटा है, राइट। तो उस बाइट का जो पहली बाइट ट्रांसमिट की गई जिसमें कि ये 0 होगी RB8, तो उस टाइम ये उस जो भी जिसका भी वो एड्रेस होगा वो उस एड्रेस को अपना रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके बाद वो रेडी हो जाएगा अपने आप में उस डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। सो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं और वे इन्हीं चारों मोड के थ्रू हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक उससे दूसरे उसमें डाटा ट्रांसफर के लिए। सो दिस इज सीरियल मोड। नेक्स्ट इज एन एसकॉन रजिस्टर। नेक्स्ट इज इंटरप्ट्स ऑफ 8051। 8051 में बेसिकली 5 इंटरप्ट है, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट है, राइट। ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट है INT0, दिस इज बेसिकली 5 INT0, देन INT1, देन ये तो हमारी उन पिनों के थ्रू आएंगे जो हमारे पोर्ट 3 के पिन हैं उनके थ्रू ये आएंगे। दे आर एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, INT0 और INT1, जो कि पोर्ट 3 के जरिए ये दोनों रिसीव किए जाएंगे, इंटरप्ट होंगे। 2 इंटरप्ट हमारे हैं टाइमर 0 की वजह से और टाइमर 1 की वजह से, और एक इंटरप्ट है हमारा सीरियल की वजह से, सीरियल कम्युनिकेशन, जैसे अभी पढ़ा था हमने RINTI, सीरियल इंटरप्ट और मतलब रिसीव इंटरप्ट और ट्रांसमिट इंटरप्ट। जब हमारा ट्रांसमिशन सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन पूरा हो जाता तो उसके बाद इंटरप्ट जनरेट होता है। ऐसे ही जो हमारे टाइमर के जो मोड थे, अलग जो 4 मोड थे, उन टाइमर मोड में फाइनली हमारा जब टाइमर काउंट या टाइमर सीक्वेंस पूरी हो जाती थी तो वो इंटरप्ट जनरेट करता था। तो वे जो 2 इंटरप्ट उनकी वजह से, एक इंटरप्ट सीरियल की वजह से। सीरियल की वजह से 2 क्यों नहीं, क्योंकि सीरियल में या तो रिसीव होगा या ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो दोनों में से एक होगा, तो जो सा भी आएगा इसलिए इसको एक ही इंटरप्ट माना गया है, क्योंकि आइदर दिस और दैट वाले हिसाब का था। इट्स समथिंग लाइक इज एन और ऑपरेशन बिटवीन RI एंड TI, राइट। ये हमारा सीरियल इंटरप्ट हमें दे रहा था, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दैट। सो ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट ये अवेलेबल है हमारे, और इनको डील करते हैं हमारे कौन कौन से फ्लैग बिट डील करते हैं। इंटरप्ट अनेबल 0, TF0 टाइमर फ्लैग 0, इंटरप्ट अनेबल 1 टाइमर फ्लैग 1, और ये RI या TI जो है ये हमारी फ्लैग बिट्स जो है इसको डिनोट करती है। एंड बाय द वे दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ दीज इंटरप्ट्स आल्सो। द प्रायोरिटी जो होगी इनकी नॉर्मली फिक्स ये प्रायोरिटी है, दैट मीन्स INT0 have the highest priority, then timer 0 have the second one, INT1 have the third one, timer 1 has the fourth one, and serial that has the least priority. So this is the priority, it the highest priority and it is the lowest priority, right? So this is the priority. These interrupts, they are also vectored interrupt. All the 5
These are vectored interrupt. Vectored interrupt हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 85 में भी कर चुके हैं, 86 में भी कर चुके हैं. क्या होता है वेक्टर्ड इंटरप्ट? कि जैसे ही कोई इंटरप्ट आता है तो हम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर और ये कहिए सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जंप कर जाता है, और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, क्योंकि पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जंप कर रहा है इसका मतलब वो उसकी वेक्टर्ड लोकेशन होगी, और उस वेक्टर्ड लोकेशन में क्या मिलता है? एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो हमारा इंटरप्ट प्रोग्राम है उसका एड्रेस. इनकी जो वेक्टर्ड लोकेशन है, इसकी वेक्टर्ड लोकेशन 003, इसकी लोकेशन 000B, 10 का गैप आ गया, 9 का गैप हो गया. नॉर्थ इन 3 4 5 6 7 8 9 A एंड B, 8 का गैप हो गया. ठीक है. देन 13 0013, then 001B and then 0023. तो इनके एक हर एक के बीच में 8 मेमोरी लोकेशन का गैप है, एंड दिस इज इनसाइड आवर इंटरनल रोम एरिया. इट इज ओवर इंटरनल रोम एरिया. रोम में कहाँ है? और वो इंटरनल है. इंटरनल मतलब जो हमारा 4 किलोबाइट की है उसके अंदर ये हमारा वेक्टर्ड लोकेशन है. राइट. सो देयर आर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स, एंड these are the 5 hardware interrupts and having the same serial priority also, 0 1 to highest to lowest. Right. Now these interrupts, they are maskable interrupts. That means we can mask them. Mask की बात आएगी तो पाएंगे how we can mask them, how we can enable them, how we can disable them, and that is done by another special function register known as interrupt enable register, IE, interrupt enable register. This interrupt enable register will enable or disable, mask or unmask these 5 interrupts. Right. This is the interrupt enable. Here it is EA, ET2, then ES, then ET1, then EX1, then ET0, then EX0. EA enable all, बात ही खत्म हो गई. अपने आप बता रहा है. अगर इसको 1 कर दिया तो जितने भी पांचों के पांचों इंटरप्ट हैं, दे ऑल विल बी enabled and they will be serviced as per the priority list, though that priority can also be modified. कैसे वो आगे बात करेंगे. So EA enable all. अगर enable all नहीं करना है then we can selectively enable them. ये तो सभी के लिए है. अगर इसको 1 कर दिया तो बात खत्म. Enable serial, that means serial इंटरप्ट को अनेबल करना है तो इस बिट को 1 कर देंगे. TI और RI के कारण जो आ रहा है वो अनेबल हो जाएंगे वो इंटरप्ट. अगर 0 कर दिया तो वे डिसेबल हो गए. ET1 एंड ET0 दैट इज ड्यू टू टाइमर. दैट मीन्स टाइमर 1 के कारण या टाइमर 0 के कारण जो इंटरप्ट आ रहे हैं उनको अनेबल करना है या डिसेबल करना है. जिसको अनेबल करना है उस बिट को हम 1 कर देंगे, जिसको डिसेबल करना है उसको 0 कर देंगे. दोनों को डिसेबल करना, दोनों को डिसेबल कर देंगे. दोनों को अनेबल करना, दोनों को अनेबल कर देंगे. राइट. एंड दीज टू दे आर फॉर INTs. जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है INT0 एंड INT1, उनको हमने अनेबल करना है या डिसेबल करना है. अनेबल करना है या डिसेबल करना, दैट इज डिसाइडेड बाय दीज 2 bits. So this IE flag, that is not flag, the IE register, which is interrupt enable register, that is responsible to enable or disable the selective interrupts. ET2 is not used in 8051. ये फर्दर माइक्रो कंट्रोलर के लिए है, जैसे 8252 वगैरह के लिए, जहाँ पर 1 की बजाय 2 की बजाय 3 टाइमर्स होते हैं, वहाँ पर इसका फंक्शन हो जाता है. अभी इसमें इसका यूज़ नहीं किया गया है.
सो दिस इज इंटरप्ट अनेबल फ्लैग। तो जिस बिट को भी हम 1 कर देंगे वो इंटरप्ट अनेबल हो जाएगा, और सभी को करना है तो EA को 1 कर देंगे, दैट मीन्स दैट विल बी अनेबल्ड, all will be enabled, right? Then comes priority interrupts, right? प्रायोरिटी ऑफ दीज इंटरप्ट्स वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि INT 0, देन टाइमर 0, देन INT 1, देन टाइमर 1 एंड देन सीरियल। दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटीज नॉर्मली। INT 0, टाइमर 0, then INT 1, timer 1 and then serial RI/TI, right? ये इनकी प्रायोरिटी है, बट दिस प्रायोरिटी कैन आल्सो बी वेरीड, ठीक है, ये चेंज की जा सकती है। उसके लिए देयर कम्स अनदर इंटरप्ट विच इज एन इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। एक और रजिस्टर आ गया which is another special function register। ये भी 8 बिट का ही होता है। तो ये रजिस्टर यूज किया जाता है इनकी प्रायोरिटी को सेट करने के लिए। ये हमारी PT2, ठीक है, PS प्रायोरिटी सीरियल इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट, देन योर PT1, then PX1, then PT0 and then PX0। नाम से ही पता चल रहा है। ये हमारी एक्सटर्नल दैट है INT के लिए, ये हमारी 2 टाइमर के लिए, ये हमारी सीरियल के लिए RI एंड TI के लिए। जिसकी प्रायोरिटी भी हम हाई रखना चाहते हैं, जिसकी प्रायोरिटी भी हाई रखना चाहते हैं उसकी बिट को हम 1 कर देंगे, जिसकी प्रायोरिटी को लो रखना चाहते हैं उसकी प्रायोरिटी को 0 कर देंगे। सीधी सी बात है। सो 0 मीन्स लो प्रायोरिटी एंड 1 मीन्स हाई प्रायोरिटी। सो दिस इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर इज यूज्ड टू चेंज मॉडिफाई दिस प्रायोरिटी, द फिक्स प्रायोरिटी। इनमें से जिसको भी हम प्रायोरिटी 0 कर देंगे उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली लोवेस्ट हो जाएगी। सो दिस थिंग कैन बी डन बाय द इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर विच इज अनदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 8051। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर इज अनदर और द लास्ट you can say special function register which is known as PCON register, that is power control register। माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि हमने बात की थी कि ये एम्बेडेड सिस्टम के लिए बना है। जहाँ कहीं भी पावर सेविंग की बात होती है, लो पावर की बात होती है, बैटरी ऑपरेटेड पावर की बात होती है, वहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, राइट। अब जब पावर बैटरी ऑपरेटेड है तो ऑब्वियस है बैटरी जितनी लंबी चलेगी उतना अच्छा है। उतना कब चलेगा कि भाई उसका जब कभी वो यूज़ नहीं हो रहा हो तो उसको पावर सेव होना चाहिए। दैट मीन्स उसकी पावर एफिशिएंटली यूज़ होनी चाहिए, राइट। सो फॉर दैट पर्पस दिस पावर कॉन रजिस्टर इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इज गिवन। बेसिकली 8051 जो है ना वो 2 मोड में काम करता है, एक आइडल मोड और एक पावर डाउन मोड। आइडल और पावर डाउन मोड ये कौन से मोड में काम करेगा, ये हमारा PCON रजिस्टर ये बताता है। ये PCON रजिस्टर जो है ये भी 8 बिट का ही रजिस्टर है। इस PCON रजिस्टर में ये जो बिट है S मोड है, राइट। ये डोंट केयर GF राइट 1 एंड GF0 राइट, एंड ये PD एंड ये IDL। PD अगर 1 है तो पावर डाउन मोड में काम करेगा, और IDL 1 है तो आइडियल मोड में काम करेगा। आइडल मोड मीन्स जिसमें कोई काम नहीं होना, उस मोड में काम पावर उसमें चले जाए। ये दोनों की दोनों बिट जनरल पर्पज बिट है, इसका पावर डाउन पावर से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये जो बिट है S मोड वाली बिट, ये S मोड वाली बिट
जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन है, उस सीरियल कम्युनिकेशन में जो हमारा बड रेट जो सेट होगा, बड रेट कौन सा, फिक्स वाला बड रेट, वो फिक्स वाला बड रेट दो होते हैं, एक 1/16 पे काम करता है, एक 1/32 पे काम करता है। तो ये 1/16 पे काम कर रहा है या 1/32 बड रेट पे काम कर रहा है, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस एस मोड। अगर ये 0 है, एस मोड 0 है, तो ये इस बड रेट पर काम करेगा, ये 1 है तो इस बड रेट पर काम करेगा। सो व्हाट विल बी द बड रेट ऑफ serial communication, fixed bud rate of serial communication, that is decided by this S mode bit। तो मेनली पावर के लिए ये दो मोड काम हमारे करते हैं। ठीक है, जब आइडल मोड में है ये बिट 1 हो जाएगी तो ये आइडल मोड में काम करेगा। उस आइडल मोड में जो है ये माइक्रो कंट्रोल जो एक तरह से पावर जो टर्न ऑफ कर देगा, और जो मिनिमम से मिनिमम पावर है वो पावर कंज्यूम करेगा सीपीयू वगैरह को ये, और पेरिफेरल यूनिट्स को ये नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है उनको ये शट डाउन कर देगा, दैट इज आइडल मोड। ठीक है, और पावर डाउन मोड में जो मैक्सिमम पावर को सेव करते हुए सीपीयू हमारा ऑन रहता है, मैक्सिमम पावर सेव करते हुए जो बाकी पेरिफेरल यूनिट्स है और उन यूनिट्स को ये शट ऑफ कर देता है, अपने आप को अलूफ कर लेता है, तो वो पावर डाउन मोड कहलाता है। तो उस पावर डाउन मोड में काम हो रहा है तो इस बिट को बंद कर देंगे। सो ये दो मोड में, पावर डाउन और आइडल मोड में, विच इज कंट्रोल बाय दिस प्रोग्राम पावर कंट्रोल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 8051, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आर्किटेक्चर, इट्स स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड इट्स मेमोरी मैनेजमेंट, the internal memory, external memory, RAM memory, program memory, RAM memory or ROM memory, data memory or program memory of 8051. From next class we will start with the instruction set of 8051. Thank you.